Welcome students to our accounting classes. Today myself Sri S.C. Jena, PGT Commerce KB Paradip want to discuss a new chapter, that is death of a partner. We have already discussed retirement of a partner and the accounting treatment of different items like gaining ratio, sacrificing ratio, treatment of goodwill, preparation of evaluation account, and the settlement of retiring partners capital account, etc. So today we will discuss when a partner dies, what are the accounting treatments will be there. So for this, first we discuss the accounting treatment. The accounting treatment in the event of death of a partner is similar to that in case of retirement of a partner. The basic difference between the two situations are, first, that the retirement of a partner may be planned to be effective from a particular date, whereas द डेथ ऑफ ए पार्टनर में अगर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, डेथ का कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी भी डेथ हो सकता है, बट रिटायरमेंट इन ए पर्टिकुलर डेट होता है. सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, हम पढ़ चुके हैं, द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ए ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज ए ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. The executors of the deceased partners are also entitled to the share of profit earned from the beginning of the financial year till the date of death. Similarly, the executors have to bear loss incurred from the beginning of the financial year till the date of death. The executors of the deceased partner are entitled to the following. That means, these are the items which will come in the credit side of deceased partner's capital account. What are the items to be adjusted, to be retained, to be transferred in the credit side of partner's capital accounts are? First, amount standing to the credit of the deceased partner's capital account and current account, which you generally you have retained as by balance BD. Is share in the goodwill of the firm. Your goodwill treatment is the same in case of retirement. Then his share of profit earned from the beginning of the financial year till the date of death. प्रॉफिट से भी उसको शेयर मिलेगा, लेकिन कितने दिन का मिलेगा? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ. इट इज टू बी कैलकुलेटेड. आगे हम पढ़ेंगे वन बाई वन. देन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इफ एनी. देन हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, interest on capital up to the date of his death, his salary or commission up to the date of his death, advance or loan given by him to the firm. अगर डिसीज्ड पार्टनर कुछ अमाउंट लोन दिया होगा वो भी क्रेडिट साइड में आएगा. देन let us see what are the items to be adjusted or to be transferred to the debit side of his capital account. Following amounts are debited to his account. His share of a loss from the beginning of the year till the date of his death. If any loss is there, it will transfer to debit side of deceased partner's capital account. Then his share of loss and revaluation of assets and liabilities. अगर प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का तो राइट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में. लॉस एंड रिवैल्यूएशन होगा, हिज शेयर विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट. एंड हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेज, हिज ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडवांस और लोन टेकन बाई हिम, अगर वो लोन दे रखा है तो उसका क्रेडिट साइड को ट्रांसफर होगा. इफ एनी लोन टेकन बाई डिसीज्ड पार्टनर इट विल ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट. एडवांस और लोन टेकन बाई हिम फ्रॉम द पार्ट. करेंट अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो द जर्नल एंट्री विल बी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. नाउ we will discuss how deceased partners capital account is prepared. देखो just like other capital accounts. So in deceased partners capital account, in credit side, Y balance BD is capital in the last balance sheet. By current account, our credit balance of current account होगा also to be transferred. By partners loan, by PL suspense. ये प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आगे डिस्कशन करेंगे.
then by revaluation account profit is there, by accumulated profits, by general reserve, by interest on capital, by salary or commission. So this is the pro forma of capital account. जनरली ये एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हर चैप्टर में ये कैपिटल अकाउंट आप बनाना है एंड दीज आर द आइटम्स हमेशा जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है। डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आता है देखो, टू करेंट अकाउंट इफ डेबिट बैलेंस इज देयर, देन टू लोन टू पार्टनर्स अगर वो लोन ले रखा है, देन रिवैल्यूएशन लॉसेस, देन टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू PL सस्पेंस अकाउंट। दिस सस्पेंस अकाउंट इज profit is calculated for the period last accounting year या beginning of the financial year to the date of his death. Then to goodwill, if old goodwill is there, if goodwill exists in the balance sheet, it will be written up. Then to deceased partners executors account जो balancing figure है, the balancing figure है, it will transfer to deceased partners executors account, right? Then payment to the executors is made as it is stated in the partnership deed or as agreed to by the remaining partners and the executors. The dues may be paid first in full immediately one installment. अगर at a time आप पूरा पैसा उसको दे रहे हो तो deceased partners executors account debited to bank. When payment is made in more than one installments तो इसमें हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. So when interest is due, interest account debited to deceased partners executors. When installment is paid, deceased partners executors account debited to bank. और जब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के हम पेमेंट करेंगे. देन कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट. देखिए यह 3 केसेस जनरली आता है. फर्स्ट केस वेयर the death occurs on the last date of the financial year. Determination of profit or loss of the firm is not a problem because 1 साल का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके होंगे. आउट ऑफ दैट प्रॉफिट हम डिसीजन पार्टनर का शेयर इजीली कैलकुलेट कर देंगे, टोटल प्रॉफिट इनटू शेयर. बट वेयर द डेथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, द एक्चुअल प्रॉफिट ऑब्टेन और लॉस इनकर्ड फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी एसेट. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3-4 महीना के लिए या 6 महीना के लिए या 7 महीने के बाद डेथ हो गया, 7 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के लिए कोई फाइनल अकाउंट नहीं बनाता है तो ये केस में हम प्रॉफिट से शेयर उसको कैसे देंगे? तो जनरली इट मे बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, केस 1, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर. इसे 3 केसेस को कंसिडर करके हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स या प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. तो प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट को या लास्ट ईयर्स प्रॉफिट को बेस करके हम डिसीजन पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. कैसे? ना लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू हिज शेयर. हियर टाइम मीन्स इफ his death occurs after 2 months, then the time will be 2/12. After 5 months, time will be 5/12, right? Next, on the basis of average profit of last years. Average profit of last years means पिछले 2-3-4 साल का प्रॉफिट या लॉस दिया होगा तो 2-3-4 साल का आप प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करके टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. देन 2-3-4 में उसको डिवाइड करो. अगर 2 साल का है तो 2 में डिवाइड करो, 3 का है तो 3 में, 4 का है तो 4 में डिवाइड करो टू गेट एवरेज प्रॉफिट. जैसे आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा देन एवरेज प्रॉफिट मतलब ये 1 ईयर का प्रॉफिट. जबकि पार्टनर का डेथ मान लो 4 महीने के बाद डेथ हो गया तो दैट 1 ईयर्स प्रॉफिट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 मंथ्स प्रॉफिट. हाउ? ना एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू हिज शेयर. ठीक. सो टाइम हियर इट इज रिटन एज, देखिए टाइम मीन्स from the date of a closing balance sheet to the date of a death. It may be in complete months. Complete month होगा the number of months by year. If it is in days, so number of days by 365. मान लो उसका डेथ 15 मार्च को हो गया, सॉरी 15 मार्च नहीं, उसका डेथ सपोज अप्रैल से मार्च उनका फाइनेंशियल ईयर है और उसका डेथ हो गया मान लो 15 मई को डेथ हो गया
तो आप यहाँ पे डेज कैलकुलेशन करना है। अप्रैल फॉर 30 डेज, 15 मई 15 डेज, 15 डेज, तो 45 डेज हो गया, तो 45 डेज बाई 365 करना है। थर्ड मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ अ टर्नओवर। टर्नओवर बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे ना, प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ लास्ट ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर का सेल मिलेगा, लास्ट ईयर्स का प्रॉफिट मिलेगा, और करेंट ईयर का सेल अप टू हिज डेट ऑफ डेथ आपको मिलेगा। तो पिछले साल को बेस करके आप करेंट ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, देन आउट ऑफ दैट प्रॉफिट इनटू हिज शेयर। यहाँ पे आप टाइम नहीं लोगे, बिकॉज सेल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ आपको मिलेगा। सो प्रॉफिट इक्वल टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बाई लास्ट ईयर्स सेल इनटू करेंट ईयर्स सेल, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। जैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा देन प्रॉफिट इनटू हिज शेयर। यहाँ पे आपको टाइम नहीं लेना। सो जर्नल एंट्री, when profit sharing ratio among continuing partner does not change, for adjustment of a profit, for calculation of his share of a profit, यहाँ पे भी हमको कुछ केसेस देखना पड़ेगा। फर्स्ट केस इज व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among continuing partner does not change, the entry will be profit and loss suspense account debited to deceased partners capital account, right? And if when profit sharing ratio of a remaining partner changes, यहाँ पे कुछ अलग हो जाता है। अगर उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ये केस में सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना है। तो जो लोग गेन करेंगे दे विल पे द अमाउंट एज प्रॉफिट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। सो द जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री विल पास डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स, राइट? देन सेकेंड पॉइंट इज आवर accounting treatment of goodwill in case of death of a partner. The accounting treatment in case of retirement and death is same treatment for retirement as well as for death. तो फर्स्ट पॉइंट, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए क्या करना है ना, फर्स्ट कैलकुलेट टोटल गुडविल ऑन द डे ऑफ डेथ इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। समटाइम्स टोटल गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन, समटाइम्स इट इज गिवन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेटेड दे रखा है, तो no need to calculate. And sometimes total goodwill is not given, at that time calculate the total goodwill of the firm on the day of death. Second, calculate gaining ratio of remaining partners. Then third case, calculate deceased partner share of goodwill. आप पहले total goodwill calculate कर लिए, then total goodwill into his share. Again I am telling, I am repeating it, देखिए। So calculate deceased partner share of goodwill. How to calculate deceased partner share of goodwill? ना goodwill into his share. तो यहाँ पे आपको मैं 3 चीज़ बताया। देखिए, पहले टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आप कैलकुलेट कर दीजिए। सेकंड, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए। थर्ड, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल आप कैलकुलेट कर दीजिए। एंड फोर्थ में क्या करना है, व्हेन डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, ये आप चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एडमिशन, ये सब में पढ़ चुके हो। अगर आप if deceased partner share of goodwill adjusted through capital accounts, then the entry will be gaining partners capital account debited to deceased partners capital account. And when next process is when deceased partner share of goodwill is adjusted through goodwill account, that means here आपको goodwill रेज करना है, रिटर्न अप करना है। जब गुडविल रेज करते हैं आप न्यू रेशियो में रेज करोगे, जब राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे। ये मेथड भी आप कर सकते हो। आइदर ए वाला जो लिखा है, ए में जो लिखा है कि आप गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट हो सकता है, और गुडविल रेज एंड रिटर्न अप हो सकता है। इन केस ऑफ गुडविल रेज, केस बी देखो, व्हेन डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू गुडविल अकाउंट, मतलब गुडविल रेज एंड रिटर्न अप। तो फर्स्ट गुडविल रेज के लिए आपको एंट्री क्या करना है ना, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल रेज करना मतलब गुडविल हमारा एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल भी यहाँ बढ़ रहा है, सो क्रेडिट। So goodwill account debited to all partners capital account, and you remember the raise, when goodwill will be raised, कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। देन उसको राइट ऑफ करना है, सेम गुडविल को फिर आप राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। अब आप गुडविल को फिर राइट ऑफ कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ए लॉट फॉर अटेंडिंग द क्लासेस. Next class we will discuss on calculation of interest on capital. Thank you.